सोनू मागो dignitaries of the NACDR team. On the dais, Chairperson of today's function, Honorable Dr. Yogesh Chandra Dubey sir, Member Coordinator, Honorable Dr. Vishwambara Mishra sir, another member of the peer team, Honorable Dr. Sri Kumar Pillai sir, Honorable Principal Dr. P.N. Tagore sir, IPSC Coordinator, Honorable Dr. Vinay Kumar Upadhyay sir. Presented here, our farm principal, dynamic leadership and activist, Dr. A.B. Buratkar sir, Dr. H. Kunjalwar sir, non-teaching staff. At the very outset, very good afternoon to one and all. Friends, as we know that yesterday in our institute, honorable members of the NACDR team arrived. We welcome them. As per the norms and UGC guidelines, they observe, scrutinize, evaluating the things. And today, we assemble here for exhibit. It's a great tradition and humble obligation of our institute to welcome our honorable guest. So, I request Dr. P.N. Tagore sir to welcome Dubey sir by offering a bouquet. Thank you very much sir. I request IPSC Coordinator Dr. Thank you very much sir. I request Vice Principal Dr. Sri Kumar Pillai sir by offering a bouquet. Thank you sir. I request Professor. Thank you very much. योगेश चंद्र दुबे सर, वाइस चांसलर, जगतगुरु रामभद्राचार्य उपाध्याय, कोऑर्डिनेटर IQAC ऑफ कॉलेज, प्रोफेसर H. Kunjalwar, वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मैनेजमेंट ऑफिस bearer, member of alumni association, respected parents, staff member of the college and students. It is an event which comes rarely in one's life and become immemorable. I have this pleasure of sharing my views before honorable peers, team members and you all. We have started over NAC under the able and eminent leadership of the Principal Dr. Buratkar sir, who retired on 30th September 2022. Even after his superannuation, he stood with us and inspired us to go through this litmus test successfully. Due to his inspiration and constant support, which boosted our morale, I think we have gone through NAC litmus test successfully. This is our third cycle assessment by NAC. I hope we are gradually improving cycle by cycle.
After first cycle, we have started PG courses in MA in Marathi and MA not possible to comply with, and therefore these PG courses are kept on hold at a present. Now, university has lifted this condition. We are starting these courses along with PG courses in other subjects from session 2023 to 2024. The management is willing to develop this college as its education to the student coming from every part of the taluka. The students are modified, students are mostly from poor financial background. The majority of the students belonging to deprived classes. I am proud to say that about 70% of the students are girl students. Due to this, the college has built girls hostel with the financial support from UGC. But as the government of Maharashtra has started 2 girls hostel in Umre, where in girls students get free lodging and boarding facility. We are lacking admission to our girls hostel. We are trying at our best to seek admission in girls hostel. With UGC assistance, we are having multi-facilities indoor stadium, floodlight of the volleyball court, gymnasium, classroom, IQAC cell, etc. We are having good alumni. The chairperson of alumni, Mr. Sudhirji Parve, is the ex-member of the Assembly of the Maharashtra government and also the president of the Panchayat Raj of Maharashtra state. One alumni, Mr. Rajuji Parve, is the present MLA, and he is also the member of our college development committee. Finally, I apologize before honorable peer team for anything knowingly or unknowingly is gone uncomfortable for them. I thanks the honorable chairperson, honorable member coordinator, and the honorable member of NAC peer team for giving their invaluable time for assessing this college. On the behalf of this college, I am very thankful for having privilege of their guidance to improve this institute. I am also thankful to all stakeholders, teaching and non-teaching staff of this college. I am also thankful to the management of this college for their constant support and inspiration. I thanks all once again and hope to continue the same tempo and support in future. Thank you. Now, as per the guidelines and norms of UGC, our honorable chairperson, Dr. Yogesh Chandra Mudge sir, is going to hand over the assessment report to our honorable principal, Dr. B.M. Tatwade sir. To which many thank you very much. It's a very great moment for all of us. Yes, sir. Thank you. Dear team, respected Krishna ji, respected present and former principals, teachers, of course students are not there. I would have loved to see them again. So disciplined, quiet students here. Anyway, before coming here, we had to see what we have studied for the last 5 years as self-study report. We have gone through it. So you know what is your identity, what are your capabilities, weakness, then challenges before you. So you are well versed in it. We have come here
just to verify what you have written about yourself. We are very happy and impressed to see that the different sections we interacted, especially our management, then college authorities, principal, then very committed teachers, committed because I know the teachers were not sufficient to match with the number of students who are admitted here. Still, because of their commitment, they could complete the syllabus, curriculum, and they are bringing out very good results. So it's the case with the students here. They are very well behaved. I have watched their cultural programs last evening. So impressed by them. That's why today I came with their uniform, but unfortunately they are not there to see it. Anyway, we are all very impressed. We had nothing to do something extra here. We had just verified what you have written about your student. So you know what you are at all. So you are not getting something lower than what you have written. Of course, you may get marginally increased your score. That is what you expect, or a little more than that. Anyway, very happy moment for you people and we also, and for having spent these 2 days here, and it's a memorable days for us also. Thank you all for cooperating and giving your service. Thank you all. Dr. Vishwambara Mishra sir to address the gathering. Honorable Chairman, Professor Dubey, and Dr. Sri Kumar, Principal of the college, the IQAC coordinator, and our ex-principal of the college is very much present here, and all the beautiful minds. Because I address wherever I go my students, my colleagues as the beautiful people. I never address as ladies or gentlemen. Because for me, beauty or beautiful is gender neutral. I call a boy as a beautiful boy, not a handsome boy. I call a lady as a beautiful lady. Why I call? Because beautiful people, they have got beautiful minds. And beautiful mind, it sees only beautiful dreams. And when you translate these beautiful dreams into reality, life becomes much more beautiful. So here, this is a beautiful college. And what we observed yesterday, that the college has got a very dynamic management. And the college has got all the young faculties. Then what else you require? Because the young and dynamic faculties, they are the torch bearers for tomorrow, for the future of the institute, of the society. So kindly, wherever you are present, try to contribute a little bit in terms of your research contributions, in terms of your sincerity to the college, in terms of your contributions to the various administrative duties that the college will assign to you from time to time. When I joined NEHU as a young lecturer, after 3 years, I joined, then I got married. I was so happy, I joined NEHU with a simple MA degree. And in the year that is in 85. So I was very happy to get a Central University job. Then after 3 years I got married. Then after 1 year I was blessed with a son.
then I was very happy. So my research side has gone somewhere. So at that particular point of time, when my senior colleagues, they are asking me, hey, why don't you do some research? Then after listening to them 2-3 times, I was thinking why this man is showing up. Because he has published some papers that he was showing up. I didn't realize that the person or the people around me, they were my well-wishers. When I realized this after 5-6 years, then I thought, yes, I will be proved to be good for nothing in future after 10 years. So then I started my journey on research. So that is why yesterday when I met some of the faculty members, I told them that try to publish some good research papers. So some of you must be feeling why this man is coming and telling us how to do research. Because that is the ultimate thing that you will pursue in the line of knowledge. Being in the knowledge industry, you have to pursue whether today or tomorrow. And that will bring a name to you and also a name to your institute. So I also told them that you type my name on Google, you will find that Google has prepared an ID for me. It provides my name, my affiliations, my designations. So that people know me, not that I am from Odisha or from somewhere else, because people know me as a professor of economics. That is your identity. Try to create that identity for each one of you. And that will be very much fruitful, not only for you, but for the college or institutes where you are working. So, the college has improved a lot. In between the last peer team visit and this peer team visit, because we have seen the recommendations of the last peer team and their suggestions for improvement, then we are happy to know that the college has adhered to the suggestions that was given, some of the suggestions, not all the suggestions that was given by the last peer team. So try to keep it the tempo, try to keep it the spirit. So with this, I wish you all the best. So after getting your score from the NAC within 3-4 days, so don't forget to call us and tell us that we have got this particular grade. So with that note, thank you once again for your hospitality, for your whatever you provided to us during the last 2 days, yesterday and today, and for everything. So thank you. God bless you all. Now I request today's chairperson, Honorable Dr. Yogesh Chandra Dubey sir, to deliver his presidential address and entitle the gathering. ओम पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए नैक इंस्पेक्शन के इस 2 दिवसीय आयोजन के अंतिम पहर में समापन बेला में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं
शिक्षक, कर्मचारिणी, कर्मचारी एवं मंचस्थ हमारे पीएस टीम के सम्मानित कोऑर्डिनेटर समन्वयक डॉक्टर मिश्रा जी, सम्मानित सदस्य डॉक्टर पिल्लई जी, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य और यशस्वी पूर्व प्राचार्य, जिन्हें मैं बड़े धैर्य से 2 दिनों से देख रहा हूं, मेरे मन में आपके प्रति बड़ा स्नेह और सम्मान दोनों है। और नए के कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उपाध्याय जी और उपाध्याय जी के साथ लगे डॉक्टर राउत जी, मैं किसका नाम गिनाऊं, प्रत्येक चेहरा और प्रत्येक इस कॉलेज का व्यक्ति मुझे व्यक्ति के रूप में नजर नहीं आ रहा है, शिक्षक कर्मचारी के रूप में नजर नहीं आ रहा है। मेरी दृष्टि में जो व्यक्ति का एक समग्र पैमाना है, उसे जिसको एक समग्र व्यक्तित्व कहते हैं, वो सब कुछ आप सबके प्रत्येक चेहरे में, प्रत्येक व्यक्ति में वह व्यक्तित्व हमें 2 दिनों में दिखाई पड़ गया। वास्तव में आज शिक्षा जगत की जो स्थितियां हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो डिसिप्लिन्स के आयाम हैं, डिसिप्लिन्स के जो स्थिति हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो छात्राएं हो, चाहे वो छात्र हो, उन सबको मैं निरंतर देखता रहता हूं। और मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, वहीं अध्यापन किया और 2 विश्वविद्यालयों का संस्थापक सदस्य भी रहा। और भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ मैंने कार्य करना प्रारंभ किया और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के साथ मैंने विश्वविद्यालय की स्थापना की और वहाँ अभी कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं ये संक्षेप में अपना परिचय दे रहा हूँ, ये आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, मैंने शिक्षक का एक जीवन जिया है, कर्मचारी का एक जीवन जिया है, अधिकारी का एक जीवन जिया है और जी रहा हूं। और मैं एक शिक्षक के रूप में जैसा भी रहा हूं, मैं तो नहीं बता सकता, मेरे छात्र बता सकते हैं, अथवा वो भारत रत्न नानाजी देशमुख जिन्होंने मुझे संस्कृत लेक्चरर के रूप में अपॉइंट करने के बाद कहा कि तुम इस संस्कृत लेक्चरर के रूप में नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे लिए अलग से विभाग बना रहा हूं और विषय जिसमें केवल विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को प्रत्येक कक्षा में अनिवार्य रूप से तुम्हें पढ़ाना होगा, वो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और उसके लिए उन्होंने एक विभाग बनाया, उस विभाग का मुझे विभाग अध्यक्ष बनाया और उस विभाग में मुझे नियुक्त किया। तो मेरा तो शुरू से कार्य ही रहा है कि छात्र छात्राओं को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में प्रशिक्षित करो। तो इन सारी चीजों में जीते जीते एक मनोमस्तिष्क अभ्यस्त हो चुका है मूल्यों के लिए जीने में। और किसी संस्था के निर्माण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या उसको लेकर के चलने में संघर्ष करना पड़ता है, उस सबको सदैव जिया हूँ, तन से, मन से और धन से जिया हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो नानाजी के द्वारा स्थापित था, इन सब की सेवाएं छोड़ करके मैं निजी विश्वविद्यालय खोलने चला गया, सारी नौकरी छोड़ करके। तो इतना बड़ा त्याग आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं, इतने संक्षेप में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो तड़पन रहती है ऐसे महापुरुषों के साथ काम करने के बाद, जीवन के में एक ऐसा अंदर से परिवर्तन हो गया कि मैं जहाँ कहीं नाइट में जाता हूँ
मैं प्रयास करता हूं कि उस संस्था को जिस स्थिति में है, हम 2 दिनों के अंदर अपने बात से, व्यवहार से, कार्य से, विचार से और अपने अनुभव से, अपने नए पीएस टीम के कार्य के अतिरिक्त भी आप लोगों को कुछ इंस्पायर कर सकूं और बता सकूं कि नहीं, कुछ आप ऐसा कीजिए, आपका महाविद्यालय आगे जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी आगे जाएगी, तो अच्छा है। मैं ये चाहता हूं कि आप उन चीजों को जाने करें, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मेरा यह कोई दबाव है कि आप ऐसा करें, क्योंकि इस संसार में करना किसी व्यक्ति के लिए वो उसके ऊपर है, वो किसी के कहने से वो नहीं करता है, करता है स्वयं उसको अनुभव करके। तो इस बीच मैं जहाँ जिससे जैसे हो सका आप लोगों को, छात्रों के बीच भी मैंने बहुत सारी बातें की, आपकी एलुमनाई से बातें की, हमारी पूरी टीम ने बातें की, जितना थोड़ा सा समय था, या जहाँ भी कोई चीज अपने से बन पड़ी कि आपको दिया जाए या कुछ बताया जाए, वो किया गया। एग्जाम्पली आपने अनुभव किया होगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात चलते चलते मैंने उसको स्ट्राइक किया, और अगर आप समझें तो यह बहुत बड़ी बात है, अन्यथा कोई बड़ी बात नहीं। शायद उस समय मैं इस चीज को छोड़ दिया होता तो जीवन भर के लिए जितने लोग सुनने वाले हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, आप सब, आपके मन में एक ऐसी ग्रंथि बनती कि इतने बड़े लोग, शिक्षा जगत के सब बड़े लोग हैं बैठे हुए, इन लोगों के सामने जब ये बात हुई कि यह राष्ट्रगीत है, तो इट इज राष्ट्रगीत। यह आपके मन में और छात्रों के मन में जीवन भर के लिए दृढ़ कर जाता, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। मैं उठ करके अंत में इस बात को कह ही दिया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। यह अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते हैं तो इसे जान लीजिए, अन्यथा जीवन में आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र छात्राएं हैं, और आपको यह प्रसंग जरूर स्मरण आएगा कभी अगर ऐसी कोई बात आई। तो ये इस तरीके की बात है कि जहाँ की पिन पॉइंट पर आप किसी को बता दें कोई चीज, वो अपने आप याद रहे। 2 दिनों के अंदर वास्तव में मैंने देखा कि जैसे एक प्रसंग मैंने चलाया मराठी डिपार्टमेंट में, मैंने बहुत सारी बातें की राउत जी से और उनके विभाग में। आप ये सोचिए जरा सा कि मैं नए पीएटीएस में आया हूं, मेरे से क्या लेना लादना इन चीजों से। थोड़ी देर के लिए आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर आप विचार करें तो थोड़ी देर के लिए ये विचार करें कि इन चीजों से मेरा क्या मतलब है, क्या लेना लादना है। लेकिन नहीं, मुझे कहीं कोई चीज पीड़ा अगर दे रही है तो उस बात को मैं आपके सामने रखूं, और आप उसको भविष्य में न जाने, हो सकता है इसमें से कौन इस बात को किस रूप में ग्रहण करके इस दिशा में चल पड़े और उसका एक परिणाम मिल जाए। यह अपना उद्देश्य नए पीएचडी के चेयरमैन के अतिरिक्त भी अपना एक शिक्षक, एक वाइस चांसलर, एक प्रोफेसर के रूप में भी अपना एक दायित्व है, जिसको कि हमने व्यक्तिगत रूप से निभाया। मेरी टीम ने तो जितना जो कुछ किया वो सब आप लोगों ने देखा, और यहाँ एक एक शिक्षक, एक एक डिपार्टमेंट को जो मैंने देखा, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं वास्तव में उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में केवल उनके सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, उनके पीएचडी नेट और रिसर्च वर्क नहीं होते हैं। एकेडमिक मैं उसे कहता हूँ जो पूरी तरीके से जिसमें एकेडमिक का व्यक्तित्व हो। पीएचडी नेट तो ये तो सामान्य योग्यताएं हैं, लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेसर का व्यक्तित्व नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, कोई मतलब नहीं। हमारे इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर जो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, और सहयोग से मैं पक्षधरता इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे ही छात्रों के एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपके महाविद्यालय में दिव्यांग हैं, लेकिन इनकी कर्मठता और योग्यता आप में से किसी से कहीं कोई कम है क्या? ज्यादा है सर, ज्यादा है। मैं इस बात को आज कहना चाहता हूं
कि समाज में बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं, उनमें हमसे आपसे अधिक प्रतिभाएं हैं, जिनको जोड़ करके सजा करके पूरे वैश्विक स्तर पर हम उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए एक संकल्प लिए और उस दिशा में चल पड़े, अपनी नौकरी छोड़ करके चल पड़े। और आज विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, वो दिव्यांगों का प्रथम विश्वविद्यालय है जहां उन्हें उठे, जिसका कुलपति होने का और संस्थापक सदस्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब दिव्यांग ऐसी प्रतिभाएं जिनके पास आंख नहीं है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते, हाथों से लिख नहीं पाते। मेरे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैर से लिखते हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुनते भी नहीं और बोलते भी नहीं, और उनके दोनों हाथ भी कटे हैं, पैर से उस संपूर्ण कार्य करते हैं। आप ऐसे लोगों को देख करके आपको ये लगेगा कि जैसे मेरा जीवन क्या है, मैं किसी काम लायक नहीं, और वो सब कुछ कर रहे हैं, अपना निजी कार्य भी कर रहे हैं और बढ़िया पेंटिंग कर रहे हैं, बढ़िया कंप्यूटर चला रहे हैं, पैर से बढ़िया राइटिंग कर रहे हैं। इन बातों को कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब में एक से एक ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। जितना आप हैं वो मत समझिए कि मैंने अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर लिया है, नहीं, आप में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो या तो उसके लिए आप स्वयं वातावरण नहीं दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, अथवा आपको वातावरण मिल नहीं पा रहा है, अथवा आप कहीं न कहीं अपने को आलसी बनाए हुए हैं। तो मेरा अभिप्राय है कि आप यहाँ इस कॉलेज का, मैं ये कहूँ कि कौन कितना अच्छा है इसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में एक अर्धाली उनकी कहूँगा, को बड़ा छोट कहता अपराध। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहते हुए मुझे अपराध बोध हो रहा है। मेरी दृष्टि में सभी योग्य और बहुत ही योग्य हैं। मैं क्या बताऊं, एक परिचारिका वृत्ति के पद पर है, विडो है आपके कॉलेज में। आज 2 दिनों से मैंने देखा वो महिला निरंतर किस तरीके से, किस एटिकेट, किस डिसिप्लिन, किस मैनर में हम लोगों के साथ, ये ले लीजिए सर, ये खा लीजिए सर, ऐसा कर लीजिए सर, धन्य है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ उसकी इस चीज को देख करके, और हम लोगों ने जाना उसके विषय में, उसकी परिस्थितियां भी हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जिस तरीके से वो कार्य कर रही थी हंसमुख ढंग से और पूरी ऊर्जा के साथ, निस्संदेह ऐसे लोग आपके यहाँ बहुत प्रशंसनीय हैं। और आपके यहाँ जितने भी शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं। मैंने कहा कि भाई यहाँ कुछ आप में डिसिप्लिन, मैंने सीधे कहा बच्चियों से कि ये छात्र तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करते, कोई परेशानी तो नहीं करते। सबने ये कहा कि नहीं सर, ये छात्र मेरे ऐसे नहीं है, ये सब मेरे भाई जैसे। छात्रों के साथ ये मुझसे मैंने एक एक एंगल से सारी चीजों को देखा, और निस्संदेह जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर, जैसा हमारे मेंबर, इन लोगों ने कहा, जितनी प्रशंसा की आपकी, वो सच है कि वी हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वो शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि आपके कॉलेज में जितना नहीं था उससे अधिक आपने प्रस्तुत किया, केवल अपने शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा। और निस्संदेह मैं पूर्व प्राचार्य और वर्तमान प्राचार्य और आपकी कोऑर्डिनेटर और राहुल जी और सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं इस बात को बड़े गर्व से कर रहा हूँ कि आप लोग जो प्राचार्य की कुर्सी पर हैं अथवा प्रशासनिक पद पर हैं, उनसे यही कहूँगा कि अपने किसी शिक्षक कर्मचारी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न होने पावे, किसी भी छात्र छात्रा के प्रति कोई अन्याय न होने पावे।
आवश्यकता पड़े तो अपने पॉकेट से उनकी मदद करें, आवश्यकता पड़े तो उनसे उनके साथ तन मन धन से आप जुड़ करके जिए। वास्तव में जीने का यही तरीका है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको दिया है। और सच कहूँ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश, भारतीय धर्म और हिंदू संस्कृति जो कुछ इस क्षेत्र और इस प्रांत के पूर्व मनीषियों ने दिया है वो इस कॉलेज में है, इस महाविद्यालय में है। इसका वर्धापन हो, ये वृद्धि की ओर प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो, महाविद्यालय का मंगल हो। हम लोगों से जितना हो सका है उतना इसका मंगल करके जा रहे हैं। आप लोग, ईश्वर आपका और मंगल करें इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप जितनी स्थिति आपकी थी, सच है हमारी टीम के हमारे दोनों सदस्यों ने बहुत चीजों को बड़ी कायदे से परखा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई किसी एंगल पर उन्होंने डिस्कशन करने या कुछ उसको हल्के में लिया है, बहुत तरीके से छानबीन की है। लेकिन फिर भी जो इन टोटल आपके कॉलेज का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, निस्संदेह आपका कॉलेज अभी बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। हमारे पास तो जो कुछ था हमने लुटा दिया है। आपका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, ईश्वर आपका मंगल करे। शिवास्ते पंथाना, जय श्री राम। Thank you. Valuable guidance and suggestions and guidance will definitely to all of us very fruitful and useful. Thank you very much, sir. It's a golden moment for IPSC coordinator Dr. Vinay Kumar Upadhyay sir to come and propose a vote of thanks here. Dr. Upadhyay sir. सर्वेभ्यो नमो नमः। नूतन आदर्श महाविद्यालय के नए मूल्यांकन के थर्ड साइकिल में 2 दिवसीय इस मूल्यांकन के अंतिम पड़ाव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस पीयर टीम मेंबर के सम्माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर योगेश दुबे सर, वाइस चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, हैंडीकैप यूनिवर्सिटी चित्रकूट, इस पीयर टीम के मेंबर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विश्वंभर मिश्रा सर, प्रोफेसर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, इस पीयर टीम के सम्माननीय मेंबर डॉक्टर श्री कुमार रामकृष्ण पिल्लई सर, फॉर्मर रिटायर्ड ड्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कॉलेजिएट एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड स्पेशल ग्रेड प्रिंसिपल महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम, इस महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर कातोड़े सर, हमेशा हम लोगों के प्रतिभा को जागरूक करने वाले इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बुरटकर सर, महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर गुंजलवार सर, और इस मूल्यांकन के संदर्भ में 2 दिन से मन, वचन और कर्म से समर्पित हमारे सभी सहयोगी कलीग्स। नए पीयर टीम के बारे में जो हम लोगों ने सुना था
बहुत लोगों ने बोला था कि नैक फियर टीम नहीं है, नैक इज द फियर टीम। लेकिन जब हमने मिला इन लोगों से तो हमको लगा नैक इज नॉट फियर टीम, इट इज अ वेरी डियर टीम। इस संदर्भ में जब डेट आया तो हम लोग डेट के बाद ये मन में काफी जिज्ञासा थी कि मेंबर कौन होंगे। फिर नए का नॉर्थ से है कि 3 दिन पहले आपको बताया जाएगा, तो हम लोग रोज अपना पोर्टल चेक करते थे नए का, नाम उसी में देखते थे। जब सर हम लोग नाम, जब मैंने देखा नाम आ गया तो मैंने पहले नाम नहीं देखा, मैंने पहले सरनेम देखा और उसमें पहला देखा दुबे जी, काफी थोड़ा सा समाधान हुआ। दूसरा देखा मैंने मिश्रा जी, और ज्यादा समाधान हुआ। मुझे अब लगा कि दुबे जी और मिश्रा जी को उपाध्याय जी पर जरूर हम करेंगे। और फिर मुझे भारत के दक्षिण प्रांत के पिल्लई सर, जो हमारे कॉलेज में जॉर्ज मैडम के डिस्ट्रिक्ट के जॉर्ज सर जो है उनके डिस्ट्रिक्ट से सर आए, तो काफी अपने को तसल्ली हुई कि अब सारा काम बन गया, अभी कहीं कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। लेकिन दुबे सर और मिश्रा सर इस दृष्टि से कुछ नहीं, मुझे लगा था वैसे, क्योंकि आपको फील हुआ, अच्छा हुआ। कालिदास ने सर अभिज्ञान शकुंतला में लिखा है, जब वो राजा जाता है, जब वो जंगल में शकुंतला को देखता है तो मृग जो है, हरिण जो है, शकुंतला की साड़ी खींचता है तो बोलता है कि दुनिया में हर आदमी अपनी जाति पे विश्वास करते हैं। प्राचीन काल में बोला था उसने। तो आज इस 2 दिवसीय संदर्भ में सर जो हैं, सबसे ज्यादा खुशी तो दुबे है, लेकिन सर से संस्कृत के हैं, इससे दोनों बात हुई। मुझे काफी खुशी हुई और मन में डर भी था कि सर हमारी खिंचाई भी कर सकते बहुत ज्यादा। किया ना। लेकिन जो मेरे मन में डर था, तो डर नहीं, सर ने मुझे मार्गदर्शन किया। सर का व्यक्तित्व जब मैंने देखा कि सर का नाम भी है योगेश चंद्र दुबे। योगेश बोला जाता है योग कि जो मालक है, माने स्वामी है, मतलब ऐसे शंकर को हम बोल सकते हैं, भगवान शंकर। तो सर के जो चेहरे पर जो तेज है वह चंद्र की तेज है, और सर का जो कर्म है वो कर्म योगी शंकर को बोला जाता है, शंकर का इनका कर्म है। क्योंकि सर जो है हैंडीकैप दिव्यांग विश्वविद्यालय में रहकर वहां के वाइस चांसलर के रूप में काम करना कितना कठिन कार्य है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। और उसमें उस विश्वविद्यालय का लोगो देखा सर, जब मैं जाना तो उसमें लोगो में दिया गया सेवा धर्म परम गहना। सेवा धर्म हर आदमी नहीं कर सकता, सेवा अत्यंत कठिन काम है। मैं भी राष्ट्रीय सेवा योजना में सर काम किया हूँ, अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि सेवा अत्यंत कठिन काम, और भी निस्वार्थ सेवा करना वह काफी कठिन काम है। तो सर ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, सर ने जो मूल्यांकन किया, सर की जो कार्य पद्धति रही, सर का जो मार्गदर्शन रहा, एक सर के मन में जो हिंदी भाषा के प्रति एक वेदना है, पीड़ा है, कीस है, मलाल है। तो सर मेरा भी हिंदी बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। मेरे पिताजी हिंदी के शिक्षक थे हाई स्कूल में, और मैं उस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ जिसको आप जानते होंगे, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, जहाँ पे राष्ट्र कवि दिनकर हुए हिंदी के, जिनकी रश्मि रति पढ़ने के बाद आज भी मन में एक उत्साह पैदा होता है, आदमी के खून खौलता है। उन्होंने लिखा था, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। और उन्होंने लिखा, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उस भूमि से हूँ, मेरी कर्म भूमि बिहार है और मेरी जन्मभूमि बिहार है, कर्म भूमि महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में आकर मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ, तो मैं महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के रीति रिवाज, महाराष्ट्र की परंपरा मुझे काफी प्रभावित की। और मैं थोड़ा, मुझे तुलनात्मक अध्ययन करने का भी थोड़ा सा मुझे शौक है। तो मैंने मराठी भाषा को, जब मैं आया तो 30 साल में मैं सर यहाँ आया, मुझे मराठी का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इस कॉलेज में मराठी मीडियम नहीं था, तो मैंने थोड़ा अध्ययन शुरू किया। एक तो पहले से स्थिति खराब थी संस्कृत की,
मुझे लगा अगर हिंदी में मैं टीचिंग करूंगा तो जो बच्चे 2-4 हैं वो भी चले जाएंगे। तो फिर मैंने एक साइड में हिंदी की पुस्तक रखी, संस्कृत की। जैसे संस्कृत का एक विभाग है वैसे हिंदी का भी तो विभाग हो सकता है। जी एकदम निश्चित रूप से। आप कंपलसरी न रहे लेकिन विभाग तो हो सकता है। एकदम निश्चित रूप से हम प्रयत्न करें कि विभाग होना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से भाषा जो है, भाषा एक माध्यम है और भाषा में जितना हम जितनी ज्यादा भाषाएं जानेंगे उससे हमारा एक सोच व्यापक बनेगा। और निश्चित रूप से भाषा, सर ने जो भी मार्गदर्शन किया, सर के व्यक्तिमत्व में मैं देखा वह काफी काबिल तारीफ है, स्तुत्य है, सराहनीय है। सर से बहुत कुछ सीखने को हमको मिला यहाँ मौका, सर की कार्य पद्धति। अतः मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, अंतःकरण से, अंतस्तस्थ मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस नेक पीयर टीम के मेंबर कोऑर्डिनेटर सम्माननीय मिश्रा सर, जो एक बहुत बड़े एकेडमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर UPSC के पैनल पर भी हैं, पेपर सेटिंग करते, सर मॉडरेशन करते। तो सर का जो बिहेव है, ज्ञान है, थोड़ा भी उनमें गर्व नहीं है, घमंड नहीं है और एकदम फ्री एंड फ्रैंक सर हैं। सर के साथ जो चर्चा किया उसमें पूरी तरह से फ्री, फेयर और फ्री चर्चा सर ने किया, मार्गदर्शन किया, कहीं कोई दुराव नहीं, कोई लाल लपेट नहीं। अतः मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से सर के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पीयर टीम के मेंबर सम्माननीय पिल्लई सर के जीवन में बोला जाए तो हाई लिविंग सिंपल, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, सिंप्लिसिटी बहुत है सर में। सर रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है, ऐसा कहा गया जो आदमी ज्ञानी होता है वो आदमी बहुत ज्यादा मौन धारण करता है, ज्यादा बोलता नहीं, वो भरा होता है। अतः सर के व्यक्तित्व में मुझे वह पूर्णता नजर आई। अतः सर के प्रति भी महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई हार्टिएस्ट थैंक्स सर फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माई कॉलेज। इस जो नैक के रूप में हम लोग ने आज पेश किया सर, इसका पूरा श्रेय हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बुरटकर से जाता है। डॉक्टर सर को मैं तो हमेशा खाते में बोलता हूँ कि ही द विजनरी मैन, ही द मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ द होल फ्रेटर्निटी ऑफ आवर कॉलेज। सर ने हम लोग जो कहानी होगी कि बल जागृत किया जाता है, याद किया जाता है। कोई है ना कथा जिसमें किसी का बल भूल जाता था तो उसको याद कराया जाता था। तो सर ने पूरे जो भी हमारे स्टाफ थे उन्होंने बोला विवेकानंद की पंक्ति, अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल अचीव्ड। उन्होंने जागृत किया कि तुम्हें बहुत प्रतिभा है, शक्ति है, ताकत है, उसको जागृत करो। और हम लोगों ने काम शुरू किया और आज इस मुकाम पे हम लोग हैं जहाँ आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपसे मिलने का भी मौका मिला हम लोगों को। सर 30 तारीख को सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम लोग की पूरी इच्छा थी कि सर को सेवावृत्ति मिले, लेकिन तकनीकी कारणों से सर हम लोग के साथ नहीं रखे। इसका बहुत मलाल सर है हम लोगों को। नहीं, सर को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं और मैं इस महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य जिन्होंने सर के बाद जिन्होंने पद ग्रहण किया, 15 दिन 20 दिन में सर ने भी बहुत अच्छा हैंडल किया नैक को। जिस रणनीति के साथ, चतुरता के साथ, जिस कुशलता के साथ सर ने जो हैंडल किया वह भी बहुत काबिल तारीफ है, स्तुत्य है सर। ये तो भाग्यशाली श्रम सबाब का है, पका पकाया भाग्यशाली। तो बोलते ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और सारे हमारे साथ हम लोगों ने 7 क्राइटेरिया बनाया था, 7 क्राइटेरिया में उसके जो भी कन्वेनर सर हैं इतने एक्टिव हैं, इनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं कि उन लोगों ने मुझे, मैं केवल सर शरीर हूँ, अवयव अगर नहीं है, अवयव मिलने के बाद ही शरीर बनता है। तो वे लोग पूरे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सभी उन लोगों ने किया। और
जिस तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ उन लोगों ने मेरा सहयोग किया, वार्तालाप किया, संवाद किया और पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर, समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ जैसा उन्होंने काम किया वो भी काबिल तारीफ है। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, जिनमें पहले क्राइटेरिया है कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भोमोरे सर, दूसरे क्राइटेरिया के मिस्टर सेंडे सर, तीसरे क्राइटेरिया डॉक्टर कोंडेकर सर, चौथे क्राइटेरिया के कन्वीनर डॉक्टर कुवाड़कर सर, पांचवें क्राइटेरिया के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आवनकर सर, छठे क्राइटेरिया है डॉक्टर राउत सर जो आपके साथ रह ही रहे हैं, आपको अनुभव आया होगा, और सातवें क्राइटेरिया के जो अत्यंत सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे उनके सर विदेश विभाग के। हाँ, इन सभी लोगों का मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में IQAC की तरफ से जो इन्होंने बहुमूल्य, अमूल्य, अहर्निश सेवा दिया इन्होंने रात्रि दिन, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जो हमारे बाकी भी जो मेंबर थे सर, कोई आदमी टेक्निकली साउंड था, किसी के पास राइटिंग स्किल है, किसी के पास स्पीकिंग स्किल है, तो सब लोगों ने जहाँ कोई मदद मुझे जरूरत लगी, जिसमें पावनपुरे सर हैं पॉलिटिकल साइंस के, मिस्टर गर्मी सर मराठी विभाग में सर आप गए थे, वे काफी टेक्निकली साउंड है सर, कंप्यूटर के मास्टर हैं सर, तो जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मदद किया। ऑल द हेड्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, ऑल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पूरे डिवोटेड होकर सर दिन रात जूनियर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं ने अपना बहुमूल्य समय दिया, अथक परिश्रम किया। CHB जितने CHB सर हैं जो लगे हुए हैं, उन्होंने दिन रात अपने डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इट इज फुली वैकेंट CHB पर चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने जो भी डेडिकेशन दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, समर्पण दिखाया, वो अभी काबिल तारीफ है। तो मैं सभी लोगों के प्रति IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस संदर्भ में अब सर के लिए, सर जो हैं गजल की रचना भी करते हैं, मराठी विभाग में सर गए थे, तो इन्होंने राउत सर, गजबे सर से गजल सुना, कविता सुनी और खुद सर ने एक गजल गाया। अभी भी हम लोगों ने देखा कि सर का जो स्वर है, आवाज है, उसमें कितनी एक पूरी तरह उस स्वर में सुरीली आवाज है, एक झंकार है, झंकार जो बोला वो झंकार है। तो मैं भी थोड़ा शेरो शायरी का शौकीन हूँ सर, संग्रह करता हूँ तो सर के लिए और तीनों मेंबर कोऑर्डिनेटर के लिए क्या बात बताइए। हाँ, अब मेरा कब स्वरूप जाके गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, क्या बात, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको अंदाज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, हो सके आपकी तारीफ को अंदाज कहाँ से लाऊं, वो अंदाज कहाँ से लाऊं। और जो भी महाविद्यालय के हमारे पूरे टीचर लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, उसके लिए बहुत सुंदर है कि कैसे आदमी अकेला और कैसे समूह में कितनी ताकत है, समुदाय में कितनी ताकत है। तो मैं एक छोटी सी वाक्य है, अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है, अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत हैं, अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत हैं, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं, अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है, अकेले हम फूल हैं, मिल जाए तो माला है, हार हैं। यह ताकत होती है एकता में, जो सर आपके सामने आई। और मैं पुनः एक बार सभी लोगों का once again I express heartiest thanks
who helped this program, supported us, helped us, suggested us, motivated us, inspired us, cooperated us, contributed us and participated in the whole accreditation assessment process. और जिन जिन लोगों का आभार मानना रह गया हो उन सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सर आपके लिए बहुत ठीक है, मैं काव्य संध्या शुरू करवा आप ये पर्सन है सर, एक आपके लिए प्लस कर देते उसके बाद इन तक, ठीक है। अगर आपको गिरिवर कहूं, अगर आपको गिरिवर कहूं तो पर्वत की ऊंचाई और दृढ़ता नजर आती है। अगर आपको सरिता कहूं तो आपके व्यक्तित्व में हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून, सब्र, संयम, साहस नजर आता है। अगर आपको ज्ञानी कहूं तो भाषा का प्रभुत्व और माधुर्य नजर आता है। अगर आपको गगन कहूं तो आपके चरित्र में इंद्रधनुषी बहुआयामी प्रतिभाएं नजर आती है। और लास्ट में सभी लोगों से मैं बोलता हूं कि हम सभी लोग एक राह के राही हैं, जिसके लिए सुंदर एक शेर है। और मैं लास्ट में अभी लास्ट है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर तुम भी हो और मुसाफिर हम भी हैं, किसी न किसी मोड़ पर तो मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पर। आप बहुत कुछ कर दिए, एक छंद में आऊंगा। मैं कुछ बहुत प्रशंसात्मक नहीं कहूँगा, मैं इस छंद के साथ केवल आप सबकी वंदना उस ईश्वर की वंदना करूँगा जिसने हम सबको यहाँ इस संसार में इस पल तक रखा है। उसके लिए जो भाव होता है कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तेरी कैसे वंदना करूं, कैसे पूजा करूं, किस तरीके से तो मेरे पर कृपा बरसावे। एक छंद में मैं बात करता हूं, क्योंकि यूं कहिए कि मैं एक साहित्यकार हूं, गीतकार हूं, संगीतकार हूं, अभिनय करता हूं, नाट्य कलाकार हूं, सब कुछ ये सब ईश्वर की देन है, मेरा कुछ अपना नहीं। जब वो जैसा कराया जीवन में वैसा किया, जब जैसा करा रहा है वैसा कर रहा हूं। इसलिए उसके लिए और आप सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप सबके अंतस में बैठे हुए उस परब्रह्म परमात्मा के लिए एक छंद। फूल पत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, फूल पत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, अर्घ्य नैवेद्य की कुछ भी शक्ति नहीं, अर्घ्य नैवेद्य की कुछ भी शक्ति नहीं, पूज्य के श्री चरण में क्या अर्पित करूं, पूज्य के श्री चरण में क्या अर्पित करूं, भावना से अलग कोई भक्ति नहीं, भावना से अलग कोई भक्ति नहीं, भावना से अलग कोई भक्ति नहीं। बस आप सबके लिए, आप सब ने जो हमारे लिए भावनाएं व्यक्त की, वैसे ही भावनाएं हम सब अपनी पूरी टीम की तरफ से
आप सबके लिए, आपके महाविद्यालय के लिए, आप सबके उज्जवल मंगलमय भविष्य के लिए उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इन भाव में अपना भाव व्यक्त करके बस जय हो।